Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Surya Roshni Limited Q2 FY25 earnings conference call. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of the future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference has been recorded. I now hand the conference over to Mr. Raju Bista, Managing Director of Surya Roshni Limited. Thank you, and over to you, sir. Thank you very much, and good afternoon, everyone. Once again, on behalf of Surya Roshni, I extend a very warm welcome to everyone for joining us today in this con call. On this call, we were joined by Mr. Naresh Singhal, ED Steel Operation, Mr. Jitendra Agrawal, CEO Lighting and Consumer Durable, Mr. Bharat Bhushan Singhal, who is our company CFO and company secretary as well, Mr. Gaurav Jain, ED and COO Steel Operation, and SGA, our Investor Relations Advisor. I hope everyone had an opportunity to go through the financial results. And now, quickly moving on to the overall financial performance and highlights. As far as Q2 FY25 is concerned, we continue to navigate a complex and challenging market landscape. Both our steel pipe business and lighting and consumer durable segment encounter unique market dynamics that influence our results. The steel pipe business experienced sharp decline in the overall coal prices, also slow demand resulting in lower revenue. However, operational efficiencies help mitigate losses arising due to the price erosion. Similarly, in the lighting and consumer durable segment, both better cost management and better product mix has resulted in a good performance. And I am happy to inform you that the company has, in fact, the board has approved to reward our shareholder as an interim dividend of 50%, which is 2.50 per equity share on the pre-bonus paid-up capital share. Also, happy to inform you that company has also declared bonus share in the ratio of 1:1. One bonus shares for every one existing shares of ₹5 for each fully paid up. Now, coming to the lighting and consumer durable. Our lighting consumer durable segment showcase resilience, achieving a 5% quarter-on-quarter, year-on-year increase in revenue. In consumer lighting, we saw good volume growth across all our sub-segment in spite decline in prices of LED products, which is still continuing. And in professional lighting segment, it deliver a decent growth, but due to the general election in Q1, there has been a delay in some of the project orders. However, the inquiry book received a very good response in professional lighting segment. The business registered a higher single-digit growth in Q2 FY25. And double-digit growth in H1 FY25. Now, coming to the consumer appliances, the seasonal demand for water heater was robust, and so hello. Sorry to interrupt, sir. We lost your audio there. Is it okay now? Yes, you may proceed. So in consumer appliances, the seasonal demand for water heater was robust and saw excellent volume growth of about 50%. Additionally,
new segment in the mixer grinder and iron categories, along with a positive response to our newly launched monoblock residential pump. Similarly, on our regional expansion into semi-urban and rural markets, where premium product adoption is rising quickly, positions us to step into growth outside the traditional metro areas, adding resilience to our portfolio against ongoing price pressures. By expanding our premium offering and increasing our geographical presence, particularly in semi-urban markets, we aim to reinforce our market position and offset price erosion in core product lines. Our focus remains on achieving FY 25 revenue growth of approximately 12 to 15%, alongside caution optimism for EBITDA margin stability. Now, coming to the steel pipe and strip segment, one of the key factors affecting our Q2 FY25 performance was a significant reduction in HR coil prices, which fall by approximately 7,500 per metric ton during the quarter ended Q2 FY25. The downward trend led to cautious purchasing behavior among distributors who opted to limit their inventory holding in the anticipation of further price adjustments. The decline in steel price also placed pressure on EBITDA with an approximately loss of about 3,000 per ton in inventory, which also includes prolonged monsoon and export freight, subdued government tendering for API order. Nevertheless, our proactive operation efficiencies enable us to offset some of this impact, allowing us to sustain an EBITDA per ton of rupees 2,401 rupees. Our value-added product mix, such as API, spiral, and galvanizing pipe, constituted approximately 45% of our revenue in H1 FY25, underscoring our ongoing strategy to enhance margins through premium offerings. The API faced muted demand due to limited government tendering, while the spiral large dia pipe saw robust performance driven by substantial order inflow, particularly within the water sector. Export volume declined on account of enhanced freight and geopolitical conflicts, such as in the Middle East. However, we remain optimistic about the export recovery within the next 6 months, driven by stabilizing demand. The commissioning of our spiral plant at Gwalior is scheduled for next month with a healthy order backlog that will enhance Q3 volume and performance. Our ERW mill in Bahadurgarh plant, operational since July already started, has already achieved 7,000 ton in outputs, and additionally expansion are underway. Our Bahadurgarh cold rolling facility and spiral plant are set to launch by mid-December, contributing to our Q4 output. The Hindupur facility expansion is underway with an initial capex allocation of about 30 crores. We anticipate full scale operation at the Hindupur facility within the next 12 months. Meanwhile, the expansion at our Anjar, Gujarat facility will advance following a technical reviewing in collaboration with the supplier. This strategic investment, aligned with our focus on efficiency and capacity, are anticipated to strengthen the operational backbone of the steel pipe segment. We have recalibrated our full year volume growth target to 7 to 8% year-on-year for FY25 in steel segment. Reflecting current market condition, we anticipate EBITDA per ton to stabilize within
the range of 5,000 to 5,200 rupees per ton, supported by operational efficiency and a positive demand outlook for the coming months. The recent recovery in steel price aided by government intervention signals a promising trend for margin recovery. Looking forward, we are optimistic about Q3 and Q4 as we continue to leverage our expanded capacity, diversified geographic focus, and operational efficiencies. By strategically positioning ourselves in value-added and export market, we aim to drive growth in the business vertical. Now, for the other financial issues, I would like to request our CFO, Mr. P.V. Singhal, to share his points. Thank you, respected MD sir, and a very good afternoon to all the participants on the call. For the quarter, the revenue was 1,529 crore as compared to 1,916 crore. EBITDA and PAT stood at rupees 83 crore and rupees 34 crore as compared to rupees 139 crore and 76 crore respectively. For first half of financial year 25, the revenue was 3,422 crore as compared to 3,791 crore. EBITDA and PAT stood at rupees 242 crore and rupees 127 crore as compared to rupees 255 crore and rupees 135 crore respectively. In lighting and consumer durables, for the quarter, the revenue stood at rupees 395 crore as against rupees 377 crore, a growth of 5% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 36 crore and rupees 26 crore respectively. For H1 financial year 25, the revenue stood at rupees 781 crore as against rupees 751 crore, a growth of 4% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 70 crore and 52 crore as compared to 68 crore and 54 crore respectively. In the steel pipe and strip during Q2 of financial year 25, the revenue was 1,135 crore as compared to 1,539 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 2,901 compared to 5,104. EBITDA and PBT stood at rupees 48 crore and rupees 28 crore against 104 crore and rupees 76 crore respectively. For H1 FY25, the revenue was 2,643 crore as compared to 3,042 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at 4,653 rupees per metric ton compared to 4,758. EBITDA and PBT stood at rupees 172 crore and 117 crore against 187 crore and 131 crore respectively. Improved capacity utilization, working capital optimization and cost rationalization enabled us to become a zero debt company and having cash surplus of 136 crore in H1 financial year 25. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. We will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Jatin Damania from Swan Investments. Please go ahead. Good evening, sir, and thank you for the opportunity. So just to start with your steel business, now if we look at the steel business, there is a sharp drop in the overall revenue, as you rightly indicated about the fall in the prices. But when you look at the overall volume, our volume has also declined almost by 20% sequentially basis. So can you help us understand which segments reported or witnessed the sharp drop in the overall volume? Yeah, Jatin ji, namaste. And ऐसा है कि आपने
जो पूछा है बेसिकली क्या है कि इस बार एक तो प्राइस बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है, वो भी 3 महीने की पीरियड में और इसी Q2 के समय में, और उसका इम्पैक्ट जो है करीब 7,500 रुपये पर टन के आसपास का डिक्लाइन था। उसके साथ ही जो है 3 चीज और हुई है। एक तो प्राइस डाउनटर्न रहे, उसके कारण मार्केट के अंदर में थोड़ा फियर था, तो जरा स्टॉक लेवल जो है अपना सब लोग कम रखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा जो रेड सी के अंदर में जो क्राइसिस चली उसके कारण जो है फ्रेट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गए थे यूरोप और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उसमें कंट्रीज में। और थर्ड जो है क्योंकि ये मॉनसून भी एक्सटेंडेड रहा तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, जिसमें हमने देखा कि जो मेजर हमारा जो थ्रस्ट जिसमें रहता था गैल्वेनाइजिंग सेगमेंट में करीब 25% की डी ग्रोथ है। और उसी तरह क्योंकि गवर्नमेंट अभी न्यूली फॉर्म हुई थी तो उसके कारण जो है कुछ 3-4-5 महीने का पीरियड थोड़ा सा रहा, जिसके अंदर में जो PSUs के ऑर्डर API वगैरह के वो कम था, तो करीब हमारा 50% से डी ग्रोथ था API ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर में। बट अभी एक्सपोर्ट में भी हमारी जो फर्दर जो फ्यूचर की बुकिंग पोजीशन है वो अच्छी है और API के भी ऑलरेडी कुछ ऑर्डर हम लोग के पास आ गए हैं। तो ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि जो आने वाले जो 2 क्वार्टर के अंदर में जो इसमें कम रह गए थे उसको हम रिकवर कर लेंगे और पूरे साल भर में जो है वॉल्यूम में 12 से 15% का ग्रोथ दिखेगा। और सिमिलरली जो है EBITDA पर टन भी 5,000 रुपये से ऊपर होगा, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो सर आप वॉल्यूम में अगर 12 से 15 बोल रहे हो तो अगर मैं मानूं तो आप करीब 9 लाख टन की वॉल्यूम बोल रहे हो, बराबर है? 9 लाख कुछ हजार टन या हाँ 9 लाख, और आपने फर्स्ट हाफ में करीबन किया 3,70,000 टन। सो हम कितना कॉन्फिडेंस है कि हमें 9 लाख अचीव कर पाएंगे? क्या हमारे पास API या GI की इतनी ऑर्डर बुक है या प्राइस रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 9 लाख वॉल्यूम टच कर पाएंगे? ऐसा है कि ऑलरेडी हम लोग जो है अक्टूबर महीने के अंदर में जो है 17-18% की वॉल्यूम ग्रोथ मतलब रेवेन्यू टर्म्स में ग्रोथ पे है। और जो है पूरे साल भर में करीब हमारा 9,10,000 टन के आसपास हो जाएगा। और एट द सेम टाइम पिछली बार H2 के अंदर में वॉल्यूम में हमको बहुत प्रेशर था, तो ग्रोथ में उसका भी एक एडवांटेज हमको मिलेगा। और एक्सपोर्ट के काफी अच्छे ऑर्डर है और फिर एक्सपोर्ट के अंदर में एक हमारे ऊपर जो है एंटी डंपिंग का एक वो था कनाडा मार्केट में, तो हम 2-3 साल से उस US के अंदर में US और कनाडा तो 5 सिटी तो काफी पिछले 5-7 साल से जा नहीं रहा था, तो वो भी हमारे फेवर में आया है। और इनफैक्ट इंडिया में हम सबसे लोएस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूटी के ऊपर में हमको जो है वो हमारे फेवर में आया है वर्डिक्ट। तो ऐसा मान के चलते अगले 6 महीने अच्छे रहेंगे। मतलब अच्छे में तो अगर 9 लाख का वॉल्यूम और 5,000 रुपये EBITDA पर टन, तो मोटा मोटी आप मान लो कि 450 करोड़ का EBITDA हमें स्टील बिजनेस से आना चाहिए। मतलब ऐसा मान के चलिए कि करीब जो है हम लोग 440 के आसपास जो है EBITDA स्टील डिवीजन का रहेगा पूरे साल भर का। और हम अगर लाइटिंग बिजनेस की अपनी बात करता है तो सर हम पहले 1,600 करोड़ की गाइड कर रहे थे, बट अभी बिकॉज ऑफ दी कहीं पे ऑर्डर हमें डिले हो गया, कहीं पे थोड़ा स्लो डाउन था, उसके बावजूद हम बोल रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर हम 12 से 15% ग्रोथ कर रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1,700 करोड़ का टॉप लाइन हमारा एक्सपेक्टेशन है। सो सेकेंड हाफ का जो अपनी गाइडेंस है या हमारी जो ऑर्डर बुक है, क्या हमारी प्रोफेशनल लाइटिंग हैज कम बैक टू दी एक्शन या कहीं पे हमें जो कंज्यूमर अप्लायंस है वहां पे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, कि हम कैसे देखें इसको? तो नाउ कमिंग जो आपने लाइटिंग का पूछा, लाइटिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और मैं आपको बताऊं कि लाइटिंग के अंदर में थोड़ा LED प्राइस में इरोजन है, वो एक्सटेंडेड चल रहा है अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम देखेंगे 15% से ऊपर है। और रेवेन्यू टर्म्स में भी हमने Q2 के अंदर में जो है 5% की ग्रोथ की है। और हम लोग 1,700 करोड़ से ज्यादा का जो है हमारा रेवेन्यू रहेगा लाइटिंग डिवीजन में। और करीब जो मैंने पहले भी गाइडेंस दी थी करीब 180 करोड़ के आसपास का, तो 170 से 180 करोड़ के EBITDA साल भर में हम लोग करेंगे। और उसमें भी लाइटिंग डिवीजन के अंदर में भी हमारा इसके अंदर में जो है अक्टूबर
मंथ में जो है काफी अच्छी शुरुआत हुई है। तो ऐसा मान के चलते हम लोग जो है H2 के अंदर में 15% से ज्यादा की ग्रोथ रेवेन्यू में रहेगा लाइटिंग डिवीजन। मोटा मोटी हम पूरे बिजनेस का 600 करोड़ का EBITDA FY25 में अनुमान लगा सकते हैं। करीब 590 करोड़ के आसपास। 590 करोड़ का। और सर दूसरी बात है कि हमने जो ये जीपी फैसिलिटी हम जो ग्वालियर में चालू कर रहे हैं, कहीं पे हमने मेंशन किया था कि हम पहले करंटली हम जीपी कॉइल्स बाहर से सोर्स करते हैं, जो हिंदपुर में, सॉरी नॉट ग्वालियर में। तो ये जीपी फैसिलिटी अपनी जो हिंदपुर में चालू हो जाएगी, उससे हमारे कॉस्टिंग में कितना फर्क गिरेगा? देखिए, एक तो हम लोग जो ग्वालियर में चालू कर रहे हैं तो वो तो जो है हमारे को स्पाइरल पाइप के लिए है, और उसके ऑलरेडी हमारे बैकलॉग काफी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। और स्पाइरल ऐसा हो गया उसमें क्योंकि फ्रेट का काफी बड़ा जो है रोल रहता है, क्योंकि वो लार्ज गया बड़ा पाइप होता है। तो गैल्वेनाइज्ड पाइप के अंदर में क्या है कि जो हम लोग अभी बाहर से जीपी कॉइल खरीदते हैं उसके अंदर में जो है हमको काफी ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो उसमें अगर हम इन हाउस वो फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो, तो उसके कारण करीब 2500 से 3000 रुपए का एडवांटेज अपने को पड़ता होगा। तो वो भी एक हिसाब से एक आज क्या है उसके प्राइस जो अब हम बाहर से आउटसोर्स करके करते हैं, तो हमारा जैसे ब्लैक पाइप से भी कम बल्कि सेक्शन पाइप जितना EBITDA हमको मिलता है। तो जैसे लास्ट मंथ इस क्वार्टर में क्योंकि सबके छूटे हुए हैं, तो जैसे सेक्शन और स्क्वायर के अंदर में करीब 1200 रुपये पर टन का EBITDA है, तो उसके अंदर में भी 1400 ही था। तो उसके कारण हमारा जो है पर टन EBITDA में नॉर्मल दिनों में अगर बात करूं तो 5000 से 6000 रुपये पर टन रहेगा, जो अभी 3-3.5 के आसपास का एवरेज रहता है। सर ये कितनी कैपेसिटी जो इनपुट में हम डाल रहे हैं जीपी कॉइल्स की कन्वर्जन वाली? साल भर में करीब ऐसा मान के चलिए 1 लाख टन की कैपेसिटी रहेगी। ओके, तो 1 लाख टन पे हम 25 करोड़ मोटा मोटी हम वहाँ से एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। हाँ, और अभी भी क्या है कि हम 1 लाख टन हम कर नहीं पाते, बिकॉज हमारी डिपेंडेंसी किसी और के साथ है। तो उस वजह से हमको 3-4 महीने तो ऐसे रहते हैं जहाँ पे कुछ भी बहुत ज्यादा चार्ज करने लगते हैं, या स्टील में जरा तेजी रहती है तो फिर ये वाले प्रोडक्ट्स में उनका इंटरेस्ट कम रहता है। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि इसके अंदर में जो है हमको जाना ही है। लैंड अपने पास ऑलरेडी है। और कब से स्टार्ट होगी ये फैसिलिटी? ऑलरेडी टेक्निकल जितना भी एवोल्यूशन था वो सब कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है 9 महीने से 1 साल के अंदर में ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाएगा। सर धन्यवाद सर। अगर और कोई क्वेश्चन रहेंगे तो मैं फिर कतार में आऊंगा। थैंक यू। Thank you. A reminder to all participants to ask a question, you may press star and 1. The next question is from the line of Aditya Pal from MSA Capital Partners. Please go ahead. सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर काफी सवाल तो मेरे पूरे हो गए, बट एक दो प्रश्न जो है, आपका जो केपेक्स है, आप लास्ट कॉल पे आपने 150 से 200 करोड़ ये साल में करोगे, एंड फर्स्ट हाफ में हमने सिर्फ लगभग 50 करोड़ का केपेक्स किया है। तो ये मान के चल सकते कि ये सेकेंड हाफ में आप सब कंप्लीट कर दोगे? तो जो इस साल के है वो तो ऑलरेडी जो है इन लाइन है, और दिसंबर में हमारा जो है बहादुरगढ़ का कोल्ड रोलिंग का फैसिलिटी और जो है स्पाइरल का जो है नेक्स्ट मंथ से ही चालू हो रहा है। और आगे के भी जो हमने कमिटमेंट किया था वो भी उसी लाइन पे है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा लैंड एक्विजिशन में थोड़ा महाराष्ट्र वाले में इशू आ रहा है, तो मुझे लगता है 5-6 महीना उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अदरवाइज अगले 3 साल में करीब करीब हम लोग 500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, और इसी साल जो है 100 करोड़ के पूरे हो रहे हैं, और अगले साल तक इंक्लूडिंग हिंदुपुर एंड जो अंजार गुजरात के अंदर में एक फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, वो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। और तीसरे साल में जाकर के जो है महाराष्ट्र का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर ऑपरेशनल स्टेज पे रहेगा। सर एंड जो हमारा एक्सपोर्ट है, ये सितंबर क्वार्टर में कितना था, जून क्वार्टर में कितना था रेवेन्यू? ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर में डीग्रोथ है हमारा। अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो टोटल अभी तक 6 मंथ का जो है 54,000 टन का हमारा जो है फिनिश प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट में।
और करीब 24% की डीग्रोथ है हमारी इसमें। एंड सर रेवेन्यू के हिसाब से कितना आएगा? रेवेन्यू के हिसाब से करीब एग्जैक्टली तो नहीं, करीब 700 से जो है 800 करोड़ के आसपास का है। अच्छा ठीक है। एंड सर एक आखिरी प्रश्न जो है, आपने लास्ट क्वार्टर बोला था आपने एक प्रोडक्ट निकाला है मोनोब्लॉक रेजिडेंशियल पंप, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? नहीं, उसका वो तो एक जो है अभी हमको 3rd मंथ हुए हैं, करीब जो है हमने 8 करोड़ की सेल की है उसमें, तो मतलब करीब 2 करोड़ के आसपास की सेल आई है। अंडरस्टूड सर, मेरा हो गया। थैंक यू सो मच सर एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी। Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, you may press star and 1. The next question is from the line of Farooq Pandole from Avesta Fund Management LLP. Please go ahead. Yeah, thanks. Sir, आपने explain किया था of the volume, why you expect volume to pick up in the second half for the pipe business, and eventually we are looking at 6 to 7% growth with better mix over this year, over last year. But as you have explained, first half margin and second quarter margin was extremely low. So what are the reasons that we are expecting improvement in margin for second half so that we'll be over 5,000 rupees ton? So एक तो इसमें सिंपल है कि क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है क्वार्टर था, ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि 3 महीने में 7,500 रुपया प्राइस 53,500 से 4,600 रुपया आ जाना, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और दूसरा जो है मॉनसून भी थोड़ा एक्सटेंड हुआ, उसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जहां हमारी कोर स्ट्रेंथ है वो एक रीजन था। तीसरा जो है हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे कि ये 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर जनरली बेटर रहते हैं, फेस्टिवल भी इसी टाइम रहता है, साथ ही एग्रीकल्चर के लिए जो गैल्वेनाइजिंग और इन सब की डिमांड भी ज्यादा रहती है। और एक और चीज जो एक्सपोर्ट में भी अनएक्सपेक्टेड था, ये जो क्राइसिस हुआ उसके कारण जो है फ्रेट के चार्जेस इतने बढ़ गए, तो सारे उधर जो है थोड़ा वो डिले हुए या उन्होंने उसको होल्ड कर दिया। एज ए रिजल्ट वो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट था। और एक जो कनाडा और यूएस का मार्केट खुल रहा है वो एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हमारा जो ऑर्डर बुक्ड है हाथ में, वो उसको भी देख करके और जो अक्टूबर की परफॉर्मेंस है और जो अभी तक हम लोग नवंबर में जिसको देख रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि 5,000 रुपए से ऊपर का EBITDA इजीली अचीव हो सकता है। मतलब अक्टूबर और नवंबर में आपने काफी इम्प्रूवमेंट देखा है और स्टील प्राइस भी जो है अब लोअर साइड से थोड़ा सा जो है मतलब स्टेबल हो करके थोड़ा अपर साइड ट्रेंड पे ही है। तो मुझे लगता है फर्दर यहाँ से कोई बहुत बड़ा स्कोप दिखता नहीं है प्राइस इरोजन होने का एचआर कोल में, तो वो भी एक बार हेल्प करेगा। और मतलब स्टॉक लेवल बहुत ही लो लेवल पे है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी, तो थोड़ा रीस्टॉकिंग भी होगी, वो भी एक रीजन रहेगा। ओके, तो आपने अर्लियर बोला था कि ओवरऑल EBITDA फॉर दिस ईयर वी आर लुकिंग 590 crore फॉर द होल कंपनी जी, एंड कैश लेवल इज 130 crore currently. 136 crore, yeah. Net cash level. Yes. हाँ, और ये in terms of order book, जो order book जो है, are we seeing, forget what is already in the order book, are we also seeing in October and November an improved sort of conversation
with respect to inquiry for better outlook of volume. So that risk of 6 to 7% of volume for the whole year, उसमें ज़्यादा risk है या नहीं? नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर फ्लो भी उस तरह से दिख रहे हैं और उसी लाइन पे डिस्कशन भी हो रहे हैं। हमें लगता है कि 7 से 8% का वॉल्यूम मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, ऐसा लगता नहीं। जो अभी करंट मंथ से परफॉर्मेंस देख करके और जो फ्यूचरिस्टिक जो एटमॉस्फेयर बन रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है 7 से 8% का रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। ग्रेट। और ये 500 करोड़ कैपेक्स जो 100 करोड़ ये साल में हम कर रहे हैं, what is the 400 crores further will be spent equally over next 2 years? So ऐसा होगा, जैसे 100 करोड़ के आसपास का तो कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर में ही मतलब टॉप अप कर रहे हैं या डीबोटलनेकिंग कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और एक हिंदुपुर और अंजार के अंदर में जो फैसिलिटी आनी है वो अगले साल तक ऑपरेशनल आ जाएगा। वो भी काफी लास्ट स्टेज पे है डिस्कशन सप्लायर के साथ। और तीसरे साल में जो चालू होना है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में करीब 300 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। वो फैसिलिटी जो है वो महाराष्ट्र में आएगी, सॉरी करीब 300 करोड़ के आसपास का, इंक्लूडिंग दैट लैंड कोस्ट। वो थर्ड ईयर में जाकर के ऑपरेशनल होएगा। हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर में भी कुछ चीजें मतलब नॉर्मल जो लोकल मार्केट के लिए, इंडिया मार्केट के लिए कुछ 1-2 मिल या एक गैल्वेनाइजिंग फैसिलिटी स्टार्ट हो सकती है, बट थर्ड साल में जाकर के फुल ऑपरेशनल पे आ जाएगा। और इसके कारण जो हमारी जो एग्जिस्टिंग, मैंने लास्ट भी बोला था, करीब 12 लाख टन की फैसिलिटी वो बढ़ करके करीब 25 लाख के आसपास हो जाएगी। और इसी में कुछ करके हमारा टारगेट है 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होने के बाद 2 मिलियन की फैसिलिटी हमारी क्रिएट हो जाए। और ये महाराष्ट्र में, या जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र में, वो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो गया, कुछ एक्विजिशन का काम भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ क्योंकि किसानों से जमीन लेने हैं तो कुछ जगह पे थोड़ा टाइम भी लगा है। मुझे लगता है जो 4-5 महीना जो हमने बोला था उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। अच्छा। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. A reminder to all participants to ask a question. You may press star and 1. The next question is from the line of Keshav Garg from Counter Cyclic PMS. Please go ahead. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर। और जो आपने ओपनिंग कमेंट, आपको भी पता है आपको जो है एक सरप्लस एक शेयर और मिला है, बोनस शेयर। जी सर उसके लिए भी धन्यवाद आपको। और सर कंपनी की परफॉर्मेंस सर बहुत अच्छी है, ऊपर नीचे तो होता रहता है सर बिजनेस में सर, बट लेकिन हमारा भय ये था सर कि पाइप सेक्टर में सर बहुत सारी कैपेसिटी आ रही है, बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत अच्छे मार्जिन रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के, तो सर सभी लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। और सर ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि डी एक्सेलरेशन के उसमें जा रही है। तो सर टेकिंग बोथ दीज फैक्टर्स टुगेदर तो ऐसा कहीं सर और देखिए सर अगर हम देखें कि स्टील प्राइस भी सर FY22 से पीक होके वो पिछले 2 साल से तो गिर ही रहे, लेकिन सर FY23 में तो फिर भी हमारा बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई एबिटा पर टन रहा था पाइप में सर, जबकि तभी भी प्राइसेस तो गिर ही रहते स्टील से। तो सर अभी हमारा सर ये हमको भय है सर कि कहीं वापस हमारा जो 3,500 रुपये पर टन जो हम करते थे स्टील में सर, कहीं हम उस ओर तो नहीं जा रहे ड्यू टू ओवर कैपेसिटी एंड ड्यू टू लो ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसके कारण जो है मतलब मैंने तो अक्सर ये देखा है कि उतनी ही जो है डिमांड भी बढ़ जाती है। और सरकार भी जो है स्टेबल है, एक बार फिर 5 साल के लिए वही सरकार कंटिन्यू कर रही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में ट्रस्ट है, चाहे वो
अमृत स्कीम हो, चाहे हर घर जल हो, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, या हाईवे की बात हो, वाटरवेज की बात हो, तो मतलब हर जगह, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ काम चलता है। यानी मैंने तो ऐसा महसूस किया कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 40 से 50 हजार करोड़ के काम भारत सरकार के चल रहे हैं। तो वो एक अपने को वैल्यू एड करेगा। दूसरा क्या है, कोई भी आदमी प्लांट लगा दे 150-200 करोड़ रुपए में और पाइप बेच दे, तो कुछ एक पार्टिकुलर सेगमेंट जिसके अंदर में सिर्फ प्राइस गिरा करके बेचना, वो तो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपका जो ब्रांड है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो मार्केट में रिलेशन है, आपका जो रीच है, चैनल पार्टनर है, वो भी मायने रखती है। उसको बनाने में 30-30 साल, 40-40 साल लोगों के लग जाते हैं। थर्डली हमने क्या देखा कि ये जरूर है कि इस तरह से कोई भी, क्योंकि स्टील के अंदर में एक अच्छा है कि HR कोल आपको बनाना है नहीं, इसीलिए आपको 15,000 करोड़ का जो है एक्सपेंस करने की, मतलब कैपेक्स करने की जरूरत पड़ती नहीं है। आपने HR कोल परचेज करना है, 150 करोड़ की मिल लगानी है इंक्लूडिंग सेट, और 100-150 करोड़ का वर्किंग कैपिटल, 300 करोड़ में कंपनी चालू हो जाती है और साल भर में 1,500-2,000 करोड़ का टर्नओवर आ जाता है। तो थोड़ा सिंपल है वैसे तो इस वजह से हमने ये देखा, ये थोड़ा रहता ही है मार्केट में। तो हमने बहुत पिछले 3-4 साल से हमने ये इस पे ट्रस्ट दिया कि भाई वॉल्यूम के पीछे ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के साथ साथ जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और प्रीमियम प्रोडक्ट पे हमको ध्यान देना है। तो आज हमारा 30% का बढ़ते बढ़ते जो है 45% हमारा कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का हो गया है। तो आगे इस रेशियो को हम मतलब जो है 60% पे लेके जाने का हमारा ट्रस्ट है। उस लेवल पे ही हम जाएंगे और उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में ही हमारा जो है करीब 500 में से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए है। सो जो हमारी 12 लाख से 19 लाख का कैपेसिटी बढ़ रहा है, वो बेसिकली उसी सेगमेंट को देख करके आगे हम बढ़ा रहे हैं। और एक बात और, आज कई HR कोल घटता है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ HR कोल घटेगा तो उससे डिमांड ही बढ़ेगी, तो जितना सस्ता स्टील होगा उसका इम्पैक्ट एक क्वार्टर तो आ सकता है। लेकिन हम तो कन्वर्टर है, हमको तो HR कोल खरीदना है और पाइप बना करके बेचना है, और हमारा जो कॉस्ट आता है वो मार्केट को हमको पास ऑन करना होता है। तो और मुझे लगता है हर एक चीज की एक कॉस्ट होती है। आज नॉर्मल आदमी जिसके पास जो है अगर कोयला है और आयरन ओर है, तो वो भी अगर स्टील बनाने जाता है तो जो 28,000 से 30,000 की कॉस्ट आती है। ज्यादातर तो जो है HR कोयल बनाने वाले बेसिकली बाहर से कोयला और आयरन ओर परचेज करके करती है, तो उसकी कॉस्ट जो है 40,000 रुपए से कम तो है नहीं। सो और बाद में साथ में फिर कन्वर्जन लगा करके और फ्रेट और ये सब करके, मुझे लगता है इससे ज्यादा नीचे आने का तो कोई ऐसा मुझे बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। बट ऐसा आता है तो भी वो एक क्वार्टर का इम्पैक्ट रहता है और उसके कारण डिमांड भी बढ़ेगा, ऐसा सबका मानना है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। दैट वाज वेरी रीअश्योरिंग सर। और सर जो हमारा कंज्यूमर डिवीजन है सर, उसमें हम लोग ने काफी प्रोडक्ट्स में सर हम लोग चले गए हैं। तो सर माय अंडरस्टैंडिंग है कि सर लाइटिंग में तो हम A to Z मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट सर तो उस कारण से हमारी कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस मैं मतलब अज्यूम कर रहा हूँ बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू द कंपटीशन। बट सर जो बाकी के प्रोडक्ट्स है सर, जैसे गीजर है, पंखे है, आयरन है, पंप्स है सर, ये सब में हम लोग सर आर वी जस्ट ट्रेडिंग, और सर ये भी हम सब कुछ इन हाउस बना रहे हैं? देखिए मतलब ऐसा है कि हमारी एक सिंपल पॉलिसी है किसी चीज में। ऐसा है, आज तो मेक और बाई ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है हर कॉर्पोरेट हाउस में। और मान लीजिए जिसका वॉल्यूम वगैरह अच्छा है और उसमें रेवेन्यू अच्छी है, तो आप उसको मतलब इन हाउस प्रोडक्शन करो तो वो फायदेमंद है। लेकिन मान लीजिए जिसका रेवेन्यू कम है, तो फिर आपकी पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो उसके कारण जो है हमने अपने अच्छे वेंडर डेवलप करके रखे हैं। बेसिकली दे आर ऑल्सो अवर एक्सटेंडेड फैमिली जैसे ही है। तो लाइटिंग में ओवरऑल जो है लाइटिंग और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट मिला के ऐसा मान लीजिए 80% तो हमारा इन हाउस है, 20% जो है वो आउटसोर्स है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट में उस जो है 20% का 80% जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल का है। राइट सर, और ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट लाइन है, जैसे पंप हो गया, पंखा, गीजर हो गया, आयरन, किचन अप्लायंस हो गए सर, तो इसमें कोई लॉस मेकिंग है क्या सर? नहीं, ऐसा है कि जनरली हम लोग
जिसमें कॉस्ट भी रिकवर नहीं करे वो काम हम करते नहीं है। और मुझे लगता है कोई अगर आपके पास ब्रांड हो, सूर्या हो या XYZ ब्रांड हो, तो लॉस होता है ऐसा मुझे तो कॉन्सेप्ट जो है डाइजेस्ट नहीं होता। अगर लॉस है तो इसका मतलब या तो आपकी बाइंग में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या आपके रियलाइजेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या आपके चैनल पार्टनर में कोई इशू होना चाहिए। सो एज सच हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट में कोई लॉस नहीं करते। हाँ, हमारा जो है कुछ टाइम तक हमारे पास जो पुरानी फर्नेस थी लाइटिंग डिवीजन की, उसके अंदर में 1-2 साल थोड़ा सा हमको तकलीफ आया था, बट उसमें भी अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी थी वो फिलिप्स को और कुछ जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर में भी ऐसा कोई लॉस नहीं है। तो लॉस वाला प्रोडक्ट जनरली हम लोग ऐसा काम नहीं करते और ऐसा है भी नहीं। जी सर। और सर लास्टली सर, सिंस हमारे 2 अलग अलग डिवीजन है, तो सर कोई सर आपका डीमर्जर पे सर क्या विचार है आपका? नहीं, आपका जो विचार है मेरा भी वही है। मैं तो बार बार मैनेजमेंट को और बोर्ड को कहता हूँ, तो लेकिन ये अच्छा है कि पिछले 1-1.5 साल से ये परंपरा हमने चालू की है कि कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हर बोर्ड मीटिंग में कुछ न कुछ हो रहा है। कभी इंटरिम डिविडेंड का साल भर में हम डिविडेंड 20% देते थे, आज 100% पे पहुंच गए हैं। और हमारे भले ही Q2 के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, फिर उसके बावजूद भी हम इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर को दे रहे हैं। और ये मैनेजमेंट ने थोड़ा मन भी बनाया है और हमारे पास कैश भी सरप्लस है। अब जो हम 650 करोड़ का या 590 करोड़ का जो हम EBITDA हर साल करेंगे, और 3 साल में आपका कैपेक्स जो है ग्रीन फील्ड मिला के अगर 500 करोड़ ही है, तो जो एक्स्ट्रा कैश जनरेट होगा वो तो बेसिकली शेयर होल्डर के पास ही जाएगा। अब शेयर होल्डर के जाने के कई फॉर्मूले हैं, उसमें से जैसे डिविडेंड भी है, बोनस भी इशू कर रहे हैं। लेकिन जो आपका कहना है वो भी ठीक है, दोनों बिजनेसेस स्टैंड अलोन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कभी लाइटिंग बहुत अच्छा था, स्टील बहुत कम प्रॉफिट जनरेट करता था, फिर आज के दिनों में जो है लाइटिंग से ऑलमोस्ट डबल जो है स्टील का परफॉर्मेंस और मार्जिन, मतलब रेवेन्यू और आपका EBITDA भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है, मतलब आपके बिहार पे मैं फिर रखूंगा, और मुझे लगता है बोर्ड इसके बारे में जरूर चिंतन कर रही है। लेकिन जब तक बोर्ड अप्रूव नहीं करता तो मैं एज ए जो है इस कुर्सी में रह करके डायरेक्ट अनाउंसमेंट तो नहीं कर सकता इस मीटिंग में। बट आपकी बात मैं फिर रखूंगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उचित समय देख करके बोर्ड इसको जरूर कंसिडर करेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. The next question is from the line of Ashwin Kedia from Alchemy. Please go ahead. नमस्कार जी। मेरा सवाल था, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर वापस से आ रहा है, तो मैं पूछना चाह रही, जो बल्क टेंडर बिजनेस होता है जल निगम का, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ पे अभी कैसी टेंडरिंग हो रही है और लास्ट 6 महीने में कैसी टेंडरिंग हुई थी, और आपको क्या लग रहा है आगे कैसी टेंडरिंग होगी इसकी? नहीं, मतलब आप लाइटिंग का पूछ रहे हैं, स्टील सेगमेंट का पूछ रहे हैं? स्टील सेगमेंट, वाटर बिजनेस का, वाटर पाइप जो ERW जाता है वाटर में गवर्नमेंट का जल निगम को, तो हमने देखा था गवर्नमेंट की टेंडरिंग बहुत कम हो गई थी, तो उसकी टेंडरिंग वापस चालू हो रही है, वो बिजनेस को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, वो वापस से शुरू हो गया क्योंकि जनरल इलेक्शन के कारण जो है उसमें स्पीड स्लो हो गया था, या नया टेंडर कुछ आ नहीं रहा था, और अभी वापस से वो शुरू हो गया है। और अभी भी जो जितना मुझे पता है, ऑल इंडिया अगर हम देखेंगे 30-35% हाउस होल्ड जो है वाटर कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो पाए हैं, और काफी जो है अंडर प्रोसेस में है। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल इसके अंदर में डिमांड इसी तरह की बनी रहेगी, और उसमें भी कई तरह के प्रोडक्ट सेगमेंट कवर होते हैं। आपके सोर्स से लेकर के जो है आप किसी एक सेंट्रल पॉइंट तक लाने के लिए स्पाइरल और बड़े साइज के पाइप काम आते हैं। फिर वहां से लेकर के आप जो है किसी गांव के पास तक या किसी टैंक के अंदर में लाओ, तो वहाँ थोड़ा मिड साइज के जो है ERW के पाइप यूज होते हैं। फिर वहाँ टैंक से लेकर के इंडिविजुअल हाउस होल्ड को कनेक्ट करने के लिए छोटे साइज के पाइप यूज होते हैं। तो सारे प्रोडक्ट कैटेगरी उसके अंदर में कवर होती है, दैट इज वन। तो सिमिलरली और ये सारा टेंडर जो हमने देखा है कि बहुत कम स्टेट है जहाँ गवर्नमेंट डायरेक्ट टेंडरिंग करती है। ज्यादातर उन्होंने ये कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्टर को ही ये जो है पूरा उन्होंने काम सौंपा है, और सारा एंड टू एंड जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है।
और कॉन्ट्रैक्टर जो है इसके अंदर में कुछ टेंडरिंग भी होती है, कुछ इंडिविजुअल अगर आपकी रीच है ऑलरेडी या आपके रिलेशन डेवलप हो रखे हैं तो उस वजह से भी मिलता है। बट हमारा जो कैपेसिटी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो ये हर घर जल के जो वाटर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो इस बारे में भी अभी हम 50% हमारा ग्रोथ में था इस पूरे क्वार्टर में। तो जितनी हमारे पास कैपेसिटी उतना करीब करीब हम कर पा रहे हैं पूरा। अच्छा। मगर ये कितना बड़ा परसेंटेज है अपने लिए बिजनेस के लिए? इसमें बड़ी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आगे, जैसा पूछना चाह रहा हूँ अपने लिए। ये अपने लिए कितना बड़ा परसेंटेज होगा ये बिजनेस जो अपने कॉन्ट्रैक्टर को बेचते हैं या जो गवर्नमेंट टेंडर करते हैं? कि देश भर में 1.5 लाख से 2 लाख टन के आसपास का जो है इसके एक्स्ट्रा डिमांड है फॉर एटलीस्ट अनदर 2-3 ईयर्स। अच्छा जी। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. The next question is from the line of Chintan Patel from Abans Investment Managers. Please go ahead. थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। सर, हमने पहले गाइड किया था अराउंड 10 लाख टन वॉल्यूम, मोर देन 10 लाख टन वॉल्यूम एंड 700 करोड़ प्लस EBITDA in steel division by FY26. So still we are on that guidance or there is some revision? नहीं, जहाँ तक देखिए वॉल्यूम का है वो थोड़ा Q2 का परफॉर्मेंस के कारण हमने उसको थोड़ा सा मतलब दोबारा कैलिब्रेट किया है और 10 लाख की जगह करीब करीब 9,15,000 टन के आसपास वॉल्यूम होगा साल भर में। और पर टन EBITDA जो है वो करीब हमने तब भी 5,000 और 5,500 के रेंज में बताया था, तो मुझे ऐसा लगता है 5,000 से 5,200 के रेंज में पूरे साल भर का पर टन EBITDA स्टील डिवीजन का रहना चाहिए। फॉर सर ये फॉर FY25 आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर FY26। हाँ, तो FY26 के अंदर में करीब हमारा वॉल्यूम ग्रोथ स्टील डिवीजन में 10 से 12% का रहेगा रेवेन्यू ग्रोथ। और अच्छा, टनेज में बोल रहे हैं क्या आप? तो टनेज में करीब हमारी जो नई फैसिलिटी क्रिएट होगी जो बहादुरगढ़ में और जो इस्पारे प्लांट चालू होगा उसकी वजह से करीब 12 लाख टन के आसपास हमारा FY26 का वॉल्यूम का टारगेट रहेगा। ओके, और EBITDA पर टन सर? EBITDA मतलब वो एडिशनल वॉल्यूम आने के बाद करीब जो है वही मतलब 5200 से 5500 के रेंज के आसपास रहेगा। ओके। तो जो इंक्रीमेंटल सेगमेंट आ रहा है ना इस साल का, ये जो अगले साल जो हमको FY26 में हेल्प करेगा, ये एक तो स्पाइरल सेगमेंट है वो ठीक है, थोड़ा मतलब उसमें हमारे को EBITDA ठीक ठाक मिल जाता है। कोल्ड रोलिंग में हमारा EBITDA मार्जिन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए मजबूरी हो गई थी, एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैटर करने के लिए टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही थी, तो इस वजह से उसमें थोड़ा मिक्स टाइप रहेगा। बट उसके बाद जो है हमारा पर टन EBITDA जो नए प्रोडक्ट कैटेगरी से होगा, मतलब वो फुल्ली जो नई फैसिलिटीज जो भी आएगा वो हायर प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो उसके कारण EBITDA में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि हम ग्रेजुअली जो है हमारा टारगेट है, जैसे हम 60% के आसपास पहुंचेंगे ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 7,500 से 8,000 रुपए पर टन का EBITDA हमारा टारगेट है, उसी लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा दिस जो ये अभी आ रहा है स्पाइरल एंड दिस अपना CR, वो अभी अंजाम से आएगा FY26 में? नहीं, वो आएगा आपका बहादुरगढ़ में है कोल्ड रोलिंग फैसिलिटी तो, और मालनपुर सेंट्रल इंडिया के अंदर में वहाँ पे एक ये स्पाइरल लार्ज ड्राई पाइप का वहाँ से क्रिएट होगा। तो अंदर ऑलमोस्ट 1 महीने में चालू हो जाएगा दोनों। ओके, अंडरस्टूड। जो अंजार से आने वाला है दैट इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ना? हाँ, वो लार्ज डाया जो है 24 इंच का ERW पाइप है, मेनली वो एक्सपोर्ट और 5 सिटी इन सब के US कनाडा मार्केट को कैटर करेगा। और वो करीब करीब से हम लोग कब कमर्शियलाइज कर लेंगे? वो अगले साल एंड तक, इस समय तक। ओके, अंडरस्टूड। ओके सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Devang from Eagle View Venture. Please go ahead. BLDC सेल और रेगुलर सेल मार्जिन के बारे में थोड़ा जानना था, क्या BLDC सेल हाई मार्जिन प्रोडक्ट है हमारे लिए?
नहीं, आप फैन का बोल रहे हैं क्या? यस सर। BLDC का मार्केट जो है, मार्केट साइज इंडिया में इतना बड़ा है नहीं। हम बहुत उसमें पुश कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस BLDC और हमने बहुत पब्लिसिटी और सब जो भी करना था बहुत किया, बट फिर भी एक्सेप्टेंस लेवल पता नहीं क्यों, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट होने के कारण जो नॉर्मल पंखा 1000 से 1200 के रेंज में लग जाता है, तो आदमी पहला जो इन्वेस्टमेंट सोचता है घरों के अंदर में जिसको पंखा लगाना है वो 1200 ही लगाता है। बट फिर भी ओवरऑल हमारा जो है अभी 5-5.5% का EBITDA मार्जिन है पंखे के अंदर में, विच इज वेरी लो, क्योंकि हम बाहर से आउटसोर्स करके कर रहे हैं। तो फैन का हमारा एक ठीक ठाक वॉल्यूम आ गया है। तो BLDC तो हम आउटसोर्स ही करेंगे, लेकिन बाकी फॉरेन कैटेगरी के अंदर में हमारा जो है अगले साल हम लोग कुछ लाइटिंग में इन्वेस्ट करेंगे 20-25 करोड़ रुपया। तो उसके कारण मुझे लगता है ये थोड़ा सा हमारा मार्जिन बढ़ के 7 से 8% के आसपास आएगा। बट लाइटिंग का मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा है। पिछले 2 साल में भी अगर देखेंगे 15% से प्लस का हमारा वॉल्यूम है, और मार्केट में काफी नए प्रोडक्ट हमें इंट्रोड्यूस किए हैं। LED में इतना प्राइस इरोजन होने के बावजूद भी, अब उसके बावजूद भी मार्केट में हम एज ए लीडर टिके हुए हैं, और हमारा EBITDA मार्जिन और EBITDA परसेंटेज भी ग्रेजुअली बढ़ाई है, और जहाँ अभी 9% के आसपास है, पूरे साल में हमारा डबल डिजिट प्लस का जो है EBITDA मार्जिन लाइटिंग डिवीजन में रहेगा। और उसमें एक नया काम हम ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि घरों के लाइटिंग लोग इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से घरों में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, घर बनाने में जो कॉस्ट लगती थी, तो लाइटिंग के अंदर में भी लोग उसको लेकर के काफी वो है। तो सेमी अर्बन और अर्बन लेवल पे भी जो है डाउनलाइटर और बेटन और जो है ये सब जो लाइटिंग है, जिसमें नॉर्मल से करीब 10 से 20 गुना ज्यादा प्राइस के होते हैं, तो वो एक फैशन ऑल इंडिया लेवल पे शुरू हो गया, अर्बन सेमी अर्बन में भी। तो उसका एक एडवांटेज सूर्य रोशनी का आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि जो हमारी रीच है रूरल मार्केट के अंदर में, वो जो है वो काफी अच्छी है। तो गांव-गांव तक जो है, क्योंकि हमारे करीब 2 लाख शॉपकीपर है देश भर में, तो वो एक शिफ्ट के कारण जो उसका भी अच्छा खासा एडवांटेज सूर्य रोशनी को मिलना चाहिए। और सर गवर्नमेंट से हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है? गवर्नमेंट का हमारा 0 है। वो ESL का थोड़ा था, आजकल तो बहुत कम के आसपास है। हम बेसिकली ऑयल एंड गैस टाइप सेक्टर भी PSU को ही देते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम लोग ऐसा बिलिंग या डीलिंग नहीं करते। बहुत थोड़ा होगा कहीं म्यूनिसिपैलिटी में इससे दुखे, बट मतलब बहुत नॉमिनल सा है। थैंक यू सर। ऑल डन। Thank you. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Mr. B.B. Singhal for closing comments. Thank you everyone for joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank you to our MD and the CEO for sparing their valuable time and addressing queries raised by participants who attended the call. For any further queries, if any, contact our investor relation advisor, SGA. Thank you. Thank you. On behalf of Surya Roshni Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.